Hello students, last time we have discussed about unification and reductionism about the physics, and also we have discussed about the two types of physics as a classical physics and quantum physics. Already we have discussed which are the factors, features of the classical physics. Classical physics में हमें क्या पढ़ना है and about the quantum physics. तो क्वांटम फिजिक्स में हमने बोला कि वन टाइप ऑफ इमेजिनेशन, और उससे रिलेटेड अगर हम एक बार और सोचे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन एट प्रेजेंट वी वेरी वेल नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि इन एटम द पॉजिटिव चार्ज इज concentrated in small region like nucleus and इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. बट सबसे पहले मतलब जब भी ऐसा स्टार्टिंग हुआ फिजिक्स का, उस टाइम पर किसी को भी एटॉमिक स्ट्रक्चर मालूम नहीं था. तो किसी को मालूम है वैसे, एंड ही नोज अबाउट द हु हैज गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम फर्स्ट टाइम, द साइंटिस्ट जे थॉमसन. जे थॉमसन has given the first time as a atomic structure. According to the Thomson, the positive charge inside of the atom is uniformly distributed. If we consider this one is the atom, then according to the suggestion of Thomson, the positive charge is uniformly distributed all over the atom and electrons are randomly distributed like this. And the Thomson has compared his model with watermelon model. Means inside of the watermelon, like pulp of the watermelon, the positive charge is uniformly distributed all over the atom, and like seeds of the watermelon, इलेक्ट्रॉन्स आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स है, एंड ये हम बोल देंगे पॉजिटिव चार्ज. लेटर ऑन द रुदरफोर्ड हैज सक्सेसफुली एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर. दैट मीन्स ये जो है वो लेटर ऑन रॉन्ग प्रूफ हुआ. जैसे हम बोलते कि अगर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम सही मान ले, एंड व्हेनेवर अल्फा पार्टिकल्स आर bombarded on it, these are the alpha particle. Now first of all think about the alpha particle means what? The alpha particle nothing but helium nucleus, helium He24 न्यूक्लियस. अब हीलियम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ओनली द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. दैट्स व्हाई ऐसा कोई भी पार्टिकल विच possess टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ये जो इंडिकेट करेगा एटॉमिक नंबर विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट, एंड ये जो है वो न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो टोटल चार, इसमें से दो प्रोटॉन मींस टू न्यूट्रॉन. ऐसा कोई भी पार्टिकल विच possess टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन, इट्स कॉल्ड हीलियम न्यूक्लियस, और इट possess टू प्रोटॉन. दैट्स व्हाई अल्फा इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. अब वंस अगेन अगर ये मॉडल पर अगर हम आ जाए, इफ दिस मॉडल अगर सही मान ले, and whenever alpha particles means positively charged particles bombarded on the atom, then all alpha particles must be scattered in a different direction. Not a single alpha particle can pass through the atom. क्योंकि अगर हम सोचें कि positive charge is uniformly distributed, then positive charge and positive charge
But whenever Rutherford has done the experiment, then the experiment results are totally different. That means if we consider this one is the atom and these are the alpha particles, so whenever alpha particles bombarded on the atom, experimental results shows that most of the alpha particles pass through the atoms. Some of the alpha particles scattered in different directions and only few alpha particles rebounds back. अब rebounds back का मतलब कि अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज मान लें, that means whenever most of the alpha particles pass through the atom, therefore the most of the portion of the atom should be hollow, and due to the positive charge we can say alpha particles scattered in a different direction, और जो भी ये इसके लाइन पर होगा this only rebounds back. That's why we can say कि most of the portion of the atom is hollow and positive charge is concentrated in small region of the atom called nucleus, and electrons are revolving around the nucleus in different orbits depending on the energy. This structure is explained by the Rutherford. This is called Rutherford experiment for the alpha scattering. और अब इसका अगर हम पूरा स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि ये कोई भी एक लीड बॉक्स, अल्फा पार्टिकल्स है, वैसे तो ह्यूमन बीइंग के लिए डेंजरस है. दे आर एमिटिंग फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स emit alpha particles, beta particles and gamma radiations. तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है. तब ऐसे यहाँ पर अगर हम लीड बॉक्स के अंदर ऑलवेज कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, यहाँ पर दो सपोज पोलर, और अगर हम यहाँ पर ऐसा कोई भी एक पाथ बना दे, कोई भी एक होल बना दे, देन वी कैन गेट द beam of alpha particles, and that beam of alpha particles are bombarded on the gold foil. मतलब गोल्ड एटम, ये हमने एक ही एटम सोचा, यहाँ पर बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम सोच लें कि दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, देन ड्यू टू द अल्फा पार्टिकल्स एंड positive charge present in atoms of the gold, most of the alpha particles pass through the atom. अब अगर पास हुए हैं, scattered हुए हैं कि नहीं हुए, वो पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पर एक ऐसा सर्कुलर स्केल पर फोटोग्राफिक प्लेट होता है और बोलेंगे इट इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फेट. तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल ये जिंक सल्फेट की प्लेट पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर इंसिडेंट होगा, तो वहां पर ऐसे सिंटिलेशन होता है, मतलब स्पार्क होगा और वहां पर ऐसा एक स्पॉट बन जाएगा. देन मोस्ट ऑफ द हमें स्पॉट इस रीजन में ही मिले. यहाँ जैसे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थोड़े थोड़े डिफरेंट डायरेक्शन में मिले, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पॉट मिले. ऐसे whatever the alpha particle pass through that, इस डायरेक्शन में अगर हम सोचे तो थोड़े कम मिलेंगे, इस रीजन में थोड़े स्पॉट हमें कम मिलेंगे. तब मालूम पड़ा कि मोस्ट ऑफ द स्पॉट मतलब अल्फा पार्टिकल्स आर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल मतलब एटम, एंड सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन. ये स्कैटर हुआ ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एंड
स्कैटरिंग एंगल जो है वो ओरिजिनल डायरेक्शन एंड whatever the scattered alpha particle, the angle between the original direction and scattered alpha particle is called scattering angle. तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि most of the portion of the atom is hollow and positive charge is concentrated in small region of the atom called nucleus. That's why J.J. Thomson was failed to explain atomic structure. But the Rutherford has successfully explained atomic structure, कि जिसमें बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर जो स्मॉल साइज है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी। अब यहाँ पर जैसे अल्फा पार्टिकल ये लाइन पर है, वहां से हमें इस एटम मतलब न्यूक्लियस का रेडियस का भी एस्टिमेट मिलेगा। That already we have discussed in earlier lecture that radius of the nucleus is approximate 10⁻⁴ meter। तो ये जो है हमें ऐसे टेक्स्ट बुक में ये विच डायग्राम दे रखा है। Once again, if we say whenever alpha particles are bombarded with the gold foil, तो gold foil के अंदर बहुत सारे एटम्स है, उसमें से जो भी अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर मिले तो बोलेंगे वो सबसे लीस्ट स्कैटर्ड वाले, या फिर एटम्स में से पास हो गए वो, और यहाँ जो पोर्शन में मिलेंगे वो ऐसे ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। देन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए एंड सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड्स बैक। तब ये सर्कुलर स्केल पर जो भी हम फोटोग्राफिक प्लेट रखे तो वहां से हमें पता चलेगा कि ऐसे स्कैटरिंग कौन से एंगल पर हुआ और कितने। तो जैसे जैसे एक ऐसा भी इसका रिलेशन है कि एज स्कैटरिंग एंगल इंक्रीजेस नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डिक्रीजेस। देन इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, ये एन बोलेंगे नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वर्सेस स्कैटरिंग एंगल, तो इसका ग्राफ कुछ हमें ऐसा मिलता है। इसकी थोड़ी और डिटेल में अगर हम ऐसा एक्सप्लेनेशन ले तो हमें यहाँ पर ऐसे स्पॉट्स मिलते हैं। तब बोलेंगे एज स्कैटरिंग एंगल इंक्रीजेस द नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डिक्रीजेस, तो स्मॉल एंगल पर मैक्सिमम है। तभी बोलेंगे कि complete structure of the atom is most of the portion of the atom is hollow, the positive charge is concentrated in small region of the nucleus where total mass of the nucleus is concentrated। और हमने उसकी ऐसे अर्लियर लेक्चर में लेंथ की रेंज भी कर दी है, मास की रेंज भी कर रखी है और ऐसे डिस्टेंस की रेंज भी कर रखी है। तो जो भी ऐसे हमने उसकी रेंज की है फॉर टाइम, लेंथ एंड मास, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसा रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सम फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, जो हमें करने थे अभी, लेकिन ये जो है वो सबसे पहले कंसीडर करो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इनिशियली J.J. Thomson ने बोला, but it was totally wrong and wrong proved by the Rutherford. Rutherford ने अल्फा स्कैटरिंग से पूरा ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया। Now in next lecture we will discuss about the fundamental forces of nature, कि जो ऐसे चार फोर्सेस है वो हम ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे।